کہ یہ ہمارے وہ ریڈ لائنز ہوں گے عوام اور عوام کے نمائندوں کے درمیان. آرڈر ان دا ہاؤس. جو ممبران ادھر کھڑے ہوئے ہیں وہ کائنڈلی لابیز میں چلے جائیں. یہ ادھر یہ آنریبل ممبران سے گزارش ہے لابیز میں چلے جائیں. یہ ادھر مناسب نہیں ہے. جی آنریبل ممبران سے گزارش ہے کہ یہاں جلسہ نہ لگائیں پلیز. میں اجلاس روک لیتا ہوں جب تک آپ اپنی میٹنگ ختم کر لیں. جی تشریف رکھیں, یہاں لابیز میں چلے جائیں پلیز. جی چیف وپ صاحب اب کائنڈلی لابیز میں چلے جائیں یا تشریف رکھیں. طارق فضل چودھری صاحب مہربانی کریں, یہ اس طرح نہ کریں, آنریبل ممبر بول رہے ہیں. درشن صاحب آپ بھی تشریف رکھیں پلیز, تھوڑا ڈیکومنٹ رکھیں ہاؤس میں. جی بیرسٹر گوہر صاحب. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جناب اسپیکر. میں بڑا مختصر کروں گا. بتایا گیا مجھے کہ شاید ہمارا ٹائم کا آلموسٹ کمپلیٹ ہے. جناب اسپیکر, آج اس ایوان کی ابتدا حکومت اور اپوزیشن بینچوں کے اچھے الفاظ سے نہیں ہوئی, اور ہم بارہا اس بات کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ اپنی زبان پہ اور اپنے غصے پہ قابو کرنا چاہیے. ایوان میں جب ہم ہوتے ہیں اور ساری دنیا اور ہماری فیملی ممبرز اس کو دیکھتے ہیں تو ایک امپریشن کریٹ ہو جاتا ہے کہ یہاں عوامی مسائل پہ بات ہوگی. جناب اسپیکر, ہمیں ایک ریڈ لائن یہاں کھینچنا ہوگا کہ وہ ہم کراس نہیں کریں گے ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن ہو, چاہے یا لیڈر آف دا ہاؤس ہو یا اس کے ممبران صاحبان. اس سے نہ صرف یہ تلخی بڑی ہے, تناؤ بڑا ہے, بس جناب اسپیکر اس سے نفرت بڑی ہے. اس ہاؤس کو ہمیشہ ایک اپنی ذمہ داری نبھانا ہوگی. اچھا اکثر صاحب نے آدھر دن بھی کہا کہ اس ایوان کو مضبوط کرو. میں اس بات کا برملا اعتراف کروں گا کہ آج تو حکومت کے ساتھ ہاتھ میں لانا ایک گھاٹے کا سودا ہے, لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا, اکثر صاحب نے اعلان کیا ہے کہ اس ایوان کی مضبوطی کے لیے, جمہوریت کے لیے, عوام کی بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے, آزاد عدلیہ کے لیے ہم تعاون کریں گے اور انکنڈیشنل تعاون کریں گے. جناب اسپیکر, ہم وزیر اعظم کی اسٹیٹمنٹ کا ویلکم کرتے ہیں, لیکن بڑا عرصہ سے یہ میٹر پینڈنگ ہے. آج مذاکرات ہے, آج بات ہو رہی ہے, کل ہو رہی ہے, اس میں دیر کس بات کی ہے؟ ہمارے مطالبات تو بڑے سمپل ہیں. ہم نے کبھی ذاتی ایجنڈا تو پٹ کیا نہیں ہے. ہم نے تو فقط اتنا کہا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ہمارے جو حق ہے وہ ہمیں دے. ہم نے اپنی لیڈر تک ایکسس مانگا ہے, وہ ڈاکٹر تک رہائی مانگی ہے, اس کا علاج مانگا ہے, اس کی بیوی تک ایکسس مانگا ہے. جناب اسپیکر, اس کی اگر آپ نے ابتدا کرنی ہے تو میں یہ بھی کہوں گا, آپ نے ہمارے ایک نمائندے اقبال افریدی کو یہاں سے سسپینڈ کر کے بھیجا اور وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ایز اے گڈ ول جسٹر اس کو باقی پیریڈ میں آنے دے. جناب اسپیکر, یہ میں آپ کو توجہ مبذول کرا رہا ہوں. جناب اسپیکر, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اقبال افریدی صاحب کو آپ نے سسپینڈ کر کے یہاں سے بھیجا ہے, پھر آپ نے رویہ رسپیکٹفل طریقے سے نہیں کیا کہ نکل جائے ورنہ میں نکلوا دوں گا. جناب اسپیکر, نکلوانے کے طریقے سب کو آتے ہیں, نکلوانے کا طریقہ اب ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے. جناب اسپیکر, میں ریکویسٹ کروں گا کہ باقی ماندہ پیریڈ کے لیے اس کو آنے دیں تاکہ وہ اپنا رول پلے کر سکے, اپنے عوام کا اپنا پوائنٹ آف ویو یہاں بتا سکے. اس کا علاقہ خیبر بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے, ٹرائبل زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں. جناب اسپیکر, میں جن سے توقع نہیں کر رہا تھا کہ وہ یہ بات کریں گے رانا تنویر صاحب سے, کیونکہ کوئی کہتا ہے وہ فرشتے بھی برا لکھتے رہے جنہیں کندھوں پہ بٹھائے رکھا, وہ فرشتے بھی برا لکھتے رہے جنہیں کندھوں پہ بٹھائے رکھا. ہماری توقع تھی کہ رانا تنویر صاحب کا اپروچ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا. انہوں نے اپنی تقریر میں تو ریمورس شو نہیں کیا, لیکن ہمارے طرف آئے اور ہمارے شیر ملتان سے انہوں نے معذرت کی ہے اور عاطف خان صاحب سے کی ہے. ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. جناب اسپیکر, گڈ ول جسٹر ہم پیش کرتے ہیں, ہم سپیٹ کرتے ہیں. لیکن ایک بات برملا میں ضرور کہوں گا, شیوپورہ خان صاحب کا عمران خان کا ہے. عمران خان شیوپورہ میں کسی کا مقابلہ نہیں کریں گے. ہمارا ولیج کونسل آپ سب کے لیے کافی ہے, کوئی بھی جگہ پلیس کرو, ہمارا ولیج کونسل مقابلے میں آ گیا. اگر آپ جیت گئے ہم چلے جائیں. جناب اسپیکر, دو تین چیزیں ایسی ہے کہ جس طرح ایم او یو سائن ہونے جا رہے جمعے والے دن امریکہ اور ایران کے دوران, اور الحمدللہ پاکستان نے اچھا رول پلے کیا ہے, ہم اس رول کو سراہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک موقع ملا مڈل ایسٹ کے پیس لانے میں اپنا رول ادا کرے, اور شاید یہ آگے سٹیپ بن کر کے آزاد فلسطین کی ایک بنیاد بھی بن جائے. لیکن جناب اسپیکر, گھر کی میں اپنی لڑائی ہو تو کبھی آپ انٹرنیشنل لیول پہ اپنا رول ادا نہیں کر سکے. یہ وقت ہے کہ ہم MOU نہ سائن کریں صرف باقی دنیا کے ساتھ, بلکہ آپس میں ان ملک کے لیے, جمہوریت کے لیے, اپنے حقوق کے لیے ہم ایک میمورنڈم آف کمٹمنٹ سائن کریں. جناب اسپیکر, اس وقت بات ہو رہی ہے بجٹ پہ. میں یہ کہوں گا یہ وقت ہے کہ ہم وہ میمورنڈم آف کمٹمنٹ سائن کریں.
कि ये हमारे वो डेड लाइन्स होंगे इस अवाम और अवाम के नुमाइंदों के दरमियान। और ऑर्डर इन द हाउस, जो मेंबरान इधर खड़े हुए हैं वो काइंडली लॉबीज में चले जाएं। ये इधर ये ऑनरेबल मेंबरान से गुजारिश है, लॉबीज में चले जाएं, ये इधर मुनासिब नहीं है। जी जनाब स्पीकर, 3 चीजों का मैं जिक्र करता हूं। ये मेमोरेंडम ऑफ कमिटमेंट जनाब स्पीकर इस वक्त की जरूरत है, हमें मेमोरेंडम ऑफ कमिटमेंट साइन करना होगा अगर हमने ये ईवान मजबूत करना है, जमहूरियत को दबाम बख्शना है, अदलिया को आजाद करना है और अवाम को बुनियादी हकूक देना है। जनाब स्पीकर, इस वक्त अवाम हमसे ये शिकवा नहीं कर रही कि उसमें गुर्बत बहुत है, लेकिन जनाब स्पीकर इस बात पे जरूर वो शिकवा कर रही है कि इसमें अमीर और गरीब में तफावत बहुत बढ़ गया है। वो अवाम इस बात पे शिकवा कर रही है। जनाब स्पीकर, मैं जो बजट पेश हुआ है, हम सारे अपोजिशन वाले यूनानिमसली उस बजट बिल को हम रिजेक्ट करते हैं और हम उसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। जनाब स्पीकर, हमारे जितने भी साथी है उन्होंने 1 बाय 1 उसके अदाद शुमार दिए हैं, इसमें कितनी महंगाई है, कितने कर्जे लिए, कितने वापस हुए हैं, कितने पॉलिसी है, सब कुछ भी जिक्र हुआ है। लेकिन मैं ये कहूंगा जनाब स्पीकर, जिस तरीके से आज आपने 3 मरतबा कहा है ऑर्डर इन द हाउस, जनाब स्पीकर, आईन के 2 आर्टिकल, सिर्फ 2 आर्टिकल इमरजेंसी के बारे में है, 2 आर्टिकल आईन में तरमीम के बारे में है। जी, ऑनरेबल मेंबरान से गुजारिश है कि यहाँ जलसा ना लगाएं प्लीज। मैं इजलास रोक लेता हूं जब तक आप अपनी मीटिंग खत्म कर लें। जी तशरीफ रखें, यहाँ लॉबीज में चले जाएं प्लीज। जी चीफ विप साहब, आप काइंडली लॉबीज में चले जाएं या तशरीफ रखें। तारिक फजल चौधरी साहब, मेहरबानी करें, ये इस तरह ना करें, ऑनरेबल मेंबर बोल रहे हैं। दर्शन साहब, आप भी तशरीफ रखें प्लीज, थोड़ा डिकोमन रखें हाउस में। जी गौर साहब बोले प्लीज। थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं ये बात जरूर अर्ज करूंगा कि आईन में सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस ईवान पे, इस नुमाइंदगान पे डाली है आईन ने। आईन के 2 आर्टिकल कहते हैं कि अगर आईन में तरमीम करनी हो तो क्या तरीका अडॉप्ट करना है, और आईन के 6 आर्टिकल कहते हैं बाकी चीजों के बारे में। लेकिन जनाब स्पीकर, आईन के 11 आर्टिकल है सिर्फ इसके बारे में कि बजट कैसे पास होगा। 11 आर्टिकल्स आईन के। ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि आपके पास जो पैसा होता है वो कौम की अमानत है और उस पैसों को कैसे हम इस्तेमाल करें, इसके लिए सबकी विजडम की जरूरत होती है। जनाब स्पीकर, हमें ये अडॉप्ट करना होगा फॉरएवर कि हमारा इस्तेमाल ऐसा हो जिसमें हम एक गरीब आदमी की लाइफ में चेंज लेके आए। ये इस बजट को हम यूनानिमसली अपोजिशन की तरफ से रिजेक्ट करते हैं क्योंकि इसमें गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। इस बजट को इसलिए रिजेक्ट करते हैं, इसके मैं आदाद शुमार पे नहीं जाता। हमारे मेंबरान साहिबान ने, मैं उनको हराज तहसीन पेश करता हूं, उन्होंने बेहतरीन तरीके से उसके आदाद शुमार रखे हैं, महंगाई कितनी है, बजट कितना है, उसके कितने कर्जे लिए गए हैं। लेकिन मैं जरूर कहूंगा जनाब स्पीकर कि 1 जुलाई को जब आम पाकिस्तानी जाएगा मार्केट में, उसको आटा महंगा मिलेगा, उसको एलपीजी का सिलेंडर महंगा मिलेगा, उसको इलाज दवाई के लिए जो दवाई लेगा वो महंगा मिलेगा। जनाब स्पीकर, उसको हर चीज जब महंगी मिलेगी तो ये बजट अवाम और गरीब का बजट कैसे कहलाए? ये अवाम की जिम्मेदारी है कि आप अवाम के नुमाइंदे की हैसियत से वो कुछ उनके लिए करें ताकि उनकी जिंदगी में रिलीफ लेके आए। जनाब स्पीकर, ईरान के जंग से सारी दुनिया इफेक्ट हुई है। जंग को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसको कैसे रिस्पॉन्ड करे ये तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। जंग के बाद ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहला चेंज जब वो लेके आए तो उन्होंने कहा इस जंग से एक शॉक हमें मिला कि हमारे पास पेट्रोलियम के रिजर्व कितने हैं। उन्होंने उसको चेंज करके 90 दिन का किया। मैं हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि 2000 से लेके आज तक आपका कानून यही कहता है कि 20 दिन का आपके पास पेट्रोल मौजूद हो, वो 20 दिन का पेट्रोल भी आपने नहीं रखा हुआ। इससे पैदा ले आप लॉ को चेंज करें, आप भी 90 दिन का स्टॉक रखें ताकि अवाम को कोई रिलीफ दे सके आप। जनाब स्पीकर, अगर बाकी आदाद शुमार पे मैं नहीं जाता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा सिर्फ इतनी बात कि जब आपकी आबादी बढ़ रही हो, प्रोडक्शन हो नहीं, आमदन से ज्यादा खर्चे हों, तो ये तकदीर ही का कहना है कि फिर गुर्बत ही होगी। जनाब स्पीकर, इसको प्रॉपरली एड्रेस करने हुकूमत के बजट में कोई प्लान नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है इससे निकलने के लिए। जनाब स्पीकर, इस वक्त मुल्क का जो यूथ है 65% आबादी उस अंडर बिलो द 30 ईयर्स पे मुश्तमिल है। जनाब स्पीकर, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी आपने नहीं दी। जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी तो प्राइवेट सेक्टर से मिलेगी। हुकूमत ने बहुत क्लेम किया कि हम प्राइवेटाइज करेंगे SNGPL को, SSGC को, PSO को, नेशनल बैंक को, रेलवे को, लेकिन आज तक वो एक ही नहीं कर सके, सिर्फ PIA कर सके, और PIA भी पूरा की पूरा घाटे का सौदा किया। सिर्फ 10 अरब रुपए खजाने में आए, बाकी पैसे कहां चले गए? आपने 10 अरब से ज्यादा तो अपने लिए एक गल्फ स्ट्रीम जहाज खरीदा है, तो आपने उसमें भी आवाम का एसेट बेचा, लेकिन इस पार्लियामेंट में नहीं बताया कि वो किस तरह ट्रांसपेरेंट था, वो किस तरह उसको मार्केट वैल्यू आपने रिसीव की है। जनाब स्पीकर, एनर्जी सेक्टर में भी आप नहीं कर सके। मैं 2 चीजों का सिर्फ जिक्र करूंगा।
जनाब स्पीकर, हेल्थ और एजुकेशन पूरी दुनिया की बैकबोन होता है। आप इस वक्त 1% से कम और 1% के करीब आप जीडीपी का वो लगा रहे हैं। जनाब स्पीकर, पूरी दुनिया 6% लगा रही है, तो आप में तरक्की कैसे आएगी? जनाब स्पीकर, बेनजीर इनकम सपोर्ट का तज़किरा हुआ है। इस साल आपने बजट में रखा 838 बिलियन रखे। जनाब स्पीकर, बेनजीर इनकम सपोर्ट पे सो पार आपने 5300 अरब रुपए लगाए। ये जब आप एलोकेशन करोगे, गुज़श्ता सालों में 5300 अरब रुपए लगाए आपने, लेकिन गुर्बत की शरह मजीद नीचे होती जा रही है। आज का रिपोर्ट यही है कि 80% से बिलो पावर्टी लाइन जिंदगी गुजार रहे हैं। जनाब स्पीकर, अगर आप उसकी ट्रू चेंज नहीं लेके आ सके तो आपको रिफॉर्म की अशद जरूरत है। मैं बजट पे जनाब स्पीकर जो बिल पेश हुआ है उसके 3 चीजें आईनी कानूनी है, मैं उसकी तरफ तवज्जो मबजूल कराऊंगा। जनाब स्पीकर, आप कस्टम एक्ट में कुछ चीजें लेके आ रहे हैं, मैं उनसे अपील रिक्वेस्ट करूंगा, हम उसमें तरमीम के लिए दरखास्त भी देंगे, लेकिन ये हुकूमत का फर्ज है कि अगर गैर आईनी प्रोविजन ये डाल रहे हैं तो इनकी लॉ मिनिस्ट्री और इनकी मुतालिका मिनिस्ट्रीज को नोट करके उनको खत्म कर दे। जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं करूंगा, कस्टम लॉ में ये लेके आ रहे हैं, एक सेक्शन लेके आ रहे हैं और फ्रीजिंग पावर देने की ड्यूरिंग ट्रायल आपका पूरा एसेट फ्रीज होगा। सेक्शन 185A ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। जनाब स्पीकर, ड्यूरिंग ट्रायल किसी का पूरा एसेट फ्रीज करना, आपके बिजनेसेस को लिक्विडिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, इससे लोग ब्लैकमेल होंगे। बराए मेहरबानी अपना ट्रायल स्ट्रक्चर चेंज करें बजाय इसके कि आप उसकी फ्रीजिंग करें। जनाब स्पीकर, आपने कस्टम सेल्स टैक्स में एक नया कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट स्क्रूटिनी कमेटी आप बना रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट स्क्रूटिनी कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन सा केस आप फाइल करेंगे। जनाब स्पीकर, कुछ पावर ऐसे होते हैं लॉ के अंडर, वो आप डिलीगेट नहीं कर सकते, ये पावर आप नहीं डिलीगेट सकते, बराए मेहरबानी इसको यहां से निकाल दें। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब स्पीकर, फेसलेस ऑडिट सिस्टम ये लेके आ रहे हैं, इनकम टैक्स में भी लेके आ रहे हैं, सेल्स टैक्स में भी लेके आ रहे हैं, कस्टम में लेके आ रहे हैं। लॉ मिनिस्टर साहब भी मौजूद है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब मौजूद है, जिसका लॉ का बैकग्राउंड है। कोई भी कानून ऐसा पास नहीं हो सकता जिसमें आपको ऑडिट वाला पर्सन आइडेंटिफाइबल ना हो, क्योंकि ये आपका राइट है कि आप कहे देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, लेक ऑफ अथॉरिटी इन्वॉल्व है, बायस इन्वॉल्व है। इंडिया ने इस किस्म की कवानीन आए 2016 में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुए, उन्होंने उनको अपहोल्ड कर दिया, लेकिन उन्होंने आइडेंटिफाइबल कर दिया कि कौन आइडेंटिफाइबल होगा। आप फेसलेस ऑडिट नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस, अगर आप कहते हैं स्पीकर करेगा, तो बावजूद इसे आप नाम नहीं लिख कर रखते, आप कहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रखेगा, तो आप इससे उसकी पहचान है, वो पर्सन डिजिग्नेटा है। जनाब स्पीकर, फेसलेस ऑडिट का कोई कंसेप्ट नहीं है, ये गैर आईनी है। मैं मुतालिबा करूंगा जनाब स्पीकर कि इसको खत्म किया जाए। जनाब स्पीकर, आखिर में मैं 4 चीजों का मगराऊंगा, ये मेरे कंस्टिट्यूएंसी रिलेटेड है, लेकिन वाकया में अर्ज करूं जनाब स्पीकर, ये एक बहुत बड़ा दिलसोज वाकया हुआ है। यहाँ इंटीरियर मिनिस्टर साहब बैठे हैं, मैंने रिक्वेस्ट की है उसके साथ पीपल्स पार्टी के नवीद कमर साहब से, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि वो इसके सिलसिले में कुछ करेंगे और वफाकी हुकूमत भी करेगी। जनाब स्पीकर, बुनेर एक पसमानदा इलाका है, हमारी एक फैमिली रह रही थी कराची में। हमारी एक रिवायत है, जब बच्ची की डेथ हो जाए तो पेरेंट्स उस बच्ची को लेकर के अपने घर लेके आते। उसकी डेथ हो गई है कराची में, वो मैयत शायद सन गवर्नमेंट की तरफ से उनको एम्बुलेंस नहीं मिला, उन्होंने 96,000 रुपए में एम्बुलेंस करके वो आए, लेकिन जब वो मीरपुर खास आए, वो शायद वहां कच्चे के डाकू हैं, लेकिन जब वो मीरपुर खास आए, जनाब स्पीकर, उस मैयत समेत उस फैमिली को लूटा गया, उनसे पैसे लिए गए, उनके जो आइटम्स थे वो लिए गए, उनसे पैसे लिए, उनसे मोबाइल लिए, और सबसे दुख की बात है कि उस मैयत के साथ जो अपना जेवरात थे वो जेवरात भी उन्होंने लिए। ये इंतहाई इंसानी अफसोस वाकया हुआ। जनाब स्पीकर, मैं नवीद कमर साहब के नोटिस में लेके आ चुका हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी इंस्पेक्शन करेंगे और पीपल्स पार्टी वाले इसको करेंगे, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मेरे भी आपसे बिलावल साहब को रिक्वेस्ट करें, उस फैमिली को आप जरूर कंपनसेट करें, उन्होंने वहाँ FIR किया है, उनको आप रिकॉर्ड पिलाएं। मैं वो बाकी हुकूमत से एक और रिक्वेस्ट करता हूँ। जनाब स्पीकर, जब अगस्त में फ्लड आया, बुनेर के 200 से ज्यादा शोहदा हुए, तो वफाकी हुकूमत ने हमें सिर्फ 20 चेक दिए थे। जनाब स्पीकर, 20 चेक के बारे में मैं इतना अर्ज करता हूँ कि मेरे पास हमारा बुनेर के यूथ जो PTI का यूथ है, जहूर खान नाम है उस बच्चे का, बड़ा वाइब्रेंट है, बहुत अच्छा काम करता है आवाम के लिए। उस जहूर खान ने मुझे बीशुनय से उसका ताल्लुक है, उसने मुझे फोन करके बताया है जनाब स्पीकर, उसमें 3 चेक है 20-20 लाख का उस फैमिली के हैं, और वो 60 लाख रुपए के अभी भी पेंडिंग है। मैं वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने चेक बराए मेहरबानी, वो तो अगस्त के पेंडिंग है, आपने 20 चेक दिए 200 के मुकाबले में, अभी भी वो पेंडिंग है, मेहरबानी करके आप हमें वो चेक क्लियर करा करके दे दे। दूसरा जनाब स्पीकर, हमारे साथ वफाकी हुकूमत ने वादा किया था, मैं लगारी साहब बैठे, मैं उनके नोटिस में लेके आ चुका हूँ, वो जितना फ्लड में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ था, ये क्लाइमेट चेंज में भी आता है। जनाब स्पीकर, वो आज तक हमारा शेयर बुनेर के लिए बिजली के मद में, जो रोडों के मद में है, कम्युनिकेशन वाला है, मैं उनसे अपील करूंगा कि वो हमारा शेयर भी हमें वो जनाब आप वो भी अनायत फरमा दे। दूसरी जनाब स्पीकर, मैं रिमाइंड कराता हूं, मेरे साथ वादा तो किया है एहसन इकबाल साहब ने कि एक निक में हमारी बुनेर एक्सप्रेस वे पेंडिंग है, उसके लिए वो कह रहा था कि मैं एक्सपेडाइट करूंगा, पर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हमारा जरूर